Hi guys, welcome to this live session. So I will just begin once I can see some of you, giving a thumbs up or a like. Probably if I can see a little bit of activity on the mobile over here. Hi Deepanshu, hi, how are you? So yes, probably everything seems all right now. So we'll just begin. So hi everyone, I am Deepanshu Singh. So I've been an educator at an academy from past 1.5 years, and I used to make the Hindu summary and other courses as well. Hi, namaste, hi everyone, hi. So I'm seeing a lot of new people now, and some of the usual faces are also there. So hi guys, I'm really glad to see you all over here. So the purpose of this live session is I won't waste much of your time because it's high time for your prelims preparation. So I won't waste much of your time. So coming straight forward to the topic, the agenda is how to maximize your scores in prelims. So as you know that prelims is only 140 days away. It's exactly 141 days are left now. So how do you maximize your score is the important thing, because if you see the past trend, UPSC as usual has always been unpredictable. So 2017 was a landmark here in the sense, the pattern completely changed, and then 2015 was also different because the cutoff criteria was changed because पेपर वन जो था वो कट ऑफ डिसाइड करने लगा 2015 से. So 2017 में the pattern was it was like people expected like 2016 की तरह बहुत ज़्यादा current affairs आएगा. Current affairs आया था, ऐसा नहीं था current affairs नहीं था. There were a lot of questions from current affairs in 2017 as well, but the problem was that it was intermixed or interlinked with your static portion of polity, geography, economy, right? So that was the issue. So a lot of people were not able to answer those questions correctly, and probably the range of cutoff as of now I can expect is around 108 to 110 for 2017. So anyway, today I'll give you 5 steps or 5 tips, basically that can help you ensure that you got really good marks in prelims, provided you do that अच्छे से and you're honest to your preparations. So beginning with the first step, first and almost it's like one of the most ignored tips that people fail to undertake is that they do not practice previous year UPSC questions. स्टडी प्लान नहीं बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं. सो आई टेक अप योर क्वेश्चंस इन द लास्ट पार्ट, बट देन आई इनिशियली गिव यू 5 important tips or 5 important things that you can basically work on, so to improve your scores in prelims. So the first and most ignored concept is that you people do not even check your previous year question papers. So for clearing UPSC prelims nowadays, at least, it's very important. And also, why I'm telling you to go through previous year papers, because until unless you go through your previous year paper, जब तक आप पुराने previous year के UPSC के papers नहीं देखेंगे, आपको ट्रेंड नहीं पता लगेगा कि आपको कैसे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. एंड सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करने से बेटर है कि आपको कौन से एरिया पे फोकस करना है. सपोज आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, तब तो आप यूर इन अ वेल ऑफ सिचुएशन. इफ यू 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, इफ समबडी इज फेयरली न्यू, लाइक आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर, सो who have started preparing like recently now. So for those people who have prepared for fairly less amount of time, so the thing is that you prepare by selectively picking out certain subjects which have a high probability of coming in the examination, right? तो वो कैसे करना है, वो तब आता है आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो कि कौन से एरिया से कैसा क्वेश्चन आता है, किस एरिया से पिक हो रहा है, एंड किस एरिया का टॉपिक और सब टॉपिक कौन सब्जेक्ट से कहाँ से उठाया जा रहा है. टू गिव यू अ फ्री ब्रीफ आइडिया कि अगर आप लोग देखो कि क्या ट्रेंड था, 2016 में देवर पॉलिटी के ओनली 5 क्वेश्चंस. इन 2017 देवर 22 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, right? And the next in current affair you have 68 questions थे almost 2016 में. One of the highly dominated area current affairs था 2016 में. 2016 में there were 68 questions directly from current affairs. But in if you're trying to say कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम थे 2017 में, तो आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है. 2016 में अप्रॉक्सिमेटली 34 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के. तो एक चीज तो बहुत क्लियर होगी यहाँ पे कि करंट अफेयर्स यू कैन नॉट इग्नोर इट. ठीक है, करंट अफेयर्स का ऐसा है कि आप एंड में यू कैन फिनिश ऑफ विथ योर समरीज, बट देन द बेसिक थिंग इज दैट इफ यू वांट टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, माय एडवाइस इज प्लीज रीड न्यूज़पेपर्स. एंड कोई भी हिंदू समरी, इवन व्हेन आई यूज्ड टू मेक हिंदू समरी, कोई भी हिंदू समरी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोला, आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम दैट नो हिंदू समरी और अ वीडियो कैन रिप्लेस योर न्यूज़पेपर रीडिंग, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड एबिलिटीज दैट यू डेवलप व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर जो सिर्फ आपको समरी से नहीं मिलेगी. अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर informational which provide information and are useful for your optional paper as well.
So the key to cracking, the first step that I'm saying is cracking this paper is analyzing the trend. So you analyze the trend by going through previous year papers. तो at least 10 साल के previous year paper आपको तो solve करके जानी है. At least minimum 10 year paper you have to solve your previous year questions of UPSC. That is the first thing. Then you will be able to understand the trend of the paper. The next is, now after you have analyzed, this is the second step. So now if you have analyzed your papers and you have attempted certain questions, you know which areas dominate and which areas are important. And because we keep on reading on certain books and certain areas that do not even come in examination, so that is one big problem. All right, so to come over this situation, you have to now strategize according to subjects. So my personal advice is that this is what I did, and it can be different for other people, but then this is what most of the people who have cleared the examination and have been consistently clearing prelims examination know this, that there are core 3-4 subjects, or there are core subjects that they the questions always swings in their favor. So either the question will be in one particular subject, you'll have 20 questions coming in 1 year, then you have 15 questions coming in that year. So these 3 core subjects are, and that will maximize your score, is first is your geography. Current affairs I'm not including because current affairs you have to study. I'm talking about static subject right now. Current affairs तो आपको पढ़ना ही है. Current affairs का तो कोई आपका शॉर्टकट है ही नहीं current affairs के लिए. तो आपको ढंग से पढ़ के जाना ही पड़ेगा कि जैसे भी पढ़ो आप, ठीक है. पहला सब्जेक्ट इज कि आपको करके जाना है, दैट इज ज्योग्राफी. ठीक है, ज्योग्राफी का इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो ज्योग्राफी इज कंप्लीटली लिंक्ड विद करंट अफेयर्स, वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, बट देन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वी डेल्व टू मच इनटू डिटेल आल्सो समटाइम्स, और इवन वी डू नॉट एनालाइज द ट्रेंड अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स. सो मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी में बहुत आते हैं, तो यू हैव टू पिक दोज एरियाज. लाइक सीरिया न्यूज में है तो सीरिया के आसपास की ज्योग्राफी देख लें, मेडिटेरेनियन सी देख लें, टर्की देख लें. ठीक है, और ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है दैट इट लिंक्स विथ योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. तो अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जैसे मान लो आपने पढ़ा कि कोर एरिया, बफर एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बेसिक है जो आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर करेगा. बट वो कहां पे है, ठीक है, वो कहां पे पाए जाते हैं, कहां सिचुएशन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां है, ठीक है, आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, लोकेशन कहां है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी. उसके आसपास रिवर्स कौन सी बह रही, कौन से स्टेट में है, किस स्टेट में नेशनल पार्क नहीं है, किस स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन मल्टीपल चॉइस एंड दे यूजुअली कम इन योर ज्योग्राफी पेपर. तो ज्योग्राफी इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. आप चाहे स्टेट एग्जाम ले लो, चाहे यूपीएससी एग्जाम ले लो, चाहे एसएससी के एग्जाम ले लो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम ले लो, ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ज्योग्राफी को आपको बिल्कुल ढंग से करके जाना है. You have to prepare it very very smartly and very effectively. Geography आप ढंग से करिए. So in case if you guys have any problem in dealing with geography, I'll provided the link for in the description box for my geography course. So this is the second batch of geography course that I'm taking right now. I have already taken a first batch of geography course there, so that was only limited to a few seats because we do not want to compromise the quality of lectures if we take too many people. So if you want to join that geography optional course, and it will help in your prelims and mains as well, because 95% of the syllabus will be for prelims and mains, and 95% of the topic that will be covered in that course will satisfy your geography optional. For 5% which is left for geography optional, I'll give you the resources and the books that you need to refer for geography optional. So if you enroll in that course, your prelims and mains, everything will be covered geography and within 30 classes. So you will finish off your geography within 30 classes, and it will be the course will be completed before even you finish finish off your May. So it will be the course will be completed within the first week of May. So that's one thing about geography. So the first subject is geography. Second is your environment and ecology. Now environment and ecology recently has been given a lot of importance because Indian Forest Services का prelims होता है, वो साथ में होता है. तो to fare out this advantage and to give advantage to forest services के लिए कुछ लोग specifically prepare करते हैं. तो उनको एडवांटेज देने के लिए एनवायरमेंट बहुत ज्यादा आजकल आने लगा आपके प्रीलिम्स के पेपर में. और दूसरी चीज ये है कि बिकॉज एनवायरमेंटल इश्यूज आर अ बिग कंसर्न फॉर द वर्ल्ड एज वेल. ठीक है, आपके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, तो उसकी वजह से भी एनवायरमेंट इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस एनीवे बढ़ता चला गया. ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट इज ज्योग्राफी, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल. आप ढंग से करके जाइए, ज्योग्राफी को अच्छे से करिए एंड फोकस फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स लाइक साइक्लोन, आपकी ओशनोग्राफी एंड योर मैप्स. मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड मैप्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी ढंग से करके जाइए, कहाँ क्या इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, एशियन लैंड मास में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर्स है, फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्योग्राफी मैप्स के साथ अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर से लिंक करनी है। सेकंड इज इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स अगेन इन इन्वायरमेंट इकोलॉजी, एंड दैट हैज टू सप्लीमेंटेड इंपॉर्टेंटली कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी न्यूज में है। सो इफ यू, अगर कुछ लोगों का क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सो व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन गो टू प्रोबेबली IUCN की वेबसाइट पे जाइए। IUCN इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इन्वायरमेंटल फील्ड। जस्ट गो देयर टू देयर साइट, चेक ऑन अबाउट देमसेल्व्स एंड दे जस्ट चेक ऑन द लिस्ट कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं उनके। सो इफ यू सी उनके पार्टनर्स, यू विल सी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो जो मेजर उनके इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, कौन कौन सी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, जस्ट गो थ्रू देम क्विकली। तो ऐसे यू वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। तो ऐसे विकीपीडिया में तो हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, कितनों पे आप ध्यान दोगे। जस्ट गो टू IUCN साइट, IUCN के अबाउट मी में जस्ट चेक देयर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके बारे में थोड़ा थोड़ा प्लीज जस्ट गो थ्रू इट। सो आपका इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा वहां से कवर हो जाएगा। जो थोड़ा रह जाता है दैट यू हैव टू एनीवे कवर थ्रू करंट अफेयर्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ज्योग्राफी एंड योर इन्वायरमेंट इकोलॉजी, दैट विल मेक द क्रक्स ऑफ योर 40 to 45 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। आप किसी भी साल का पेपर देख लो, चाहे 2015 देख लो, 2016, 2017 देख लो, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के बीच में आपके 40 to 50 क्वेश्चंस घूम जाते हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज लिंक टू करंट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्स योर पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये चार सब्जेक्ट, दो बाकी चार सब्जेक्ट टोटल जो आपका क्रक्स डिसाइड करेंगे सिलेक्शन का, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो वैसे तो फ्लक्चुएट हुआ, 2017 में बहुत ज्यादा आया, 2016 में उतने ज्यादा नहीं थे, 2017 में ज्यादा क्यों हो गया रेशियो, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स लिंक टू योर पॉलिटी वेर आस्क्ड। तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था, बट देन इट वाज लिंक टू योर स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी एज वेल। तो इसलिए करंट अफेयर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, जैसे आजकल कल जुडिशरी का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, ठीक है, जुडिशरी बहुत ज्यादा न्यूज में है, आपके ये क्रिमिनल लॉज बहुत न्यूज में है, आपका रिजर्वेशन को लेके पॉलिसी बहुत न्यूज में, आपका लैंग्वेज को लेके इशू बहुत ज्यादा न्यूज में है। सो जस्ट गो थ्रू दीज प्रोविजंस व्हिच आर इन न्यूज। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन मेंशन है, लाइक गवर्नर के लिए क्या प्रोविजंस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जो चीजें करंट अफेयर्स में आ रही हैं रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत बुक से आप पढ़ लीजिए, या DD वासु जो भी पढ़ना है, आई वुड प्रेफर कि आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, फेयरली वेल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सो दैट शुड बी द क्राइटेरिया कि पॉलिटी नेक्स्ट आपको प्रेफरेंस देना है पॉलिटी को। फर्स्ट इज ज्योग्राफी, सेकंड इज इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, थर्ड इज योर पॉलिटी, एंड लास्ट जो आपको प्रेफरेंस देना है दैट इज योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यू हैव क्वेश्चन जो होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, इट्स फेयरली इजी नाउ। एक दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो जो आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से आते हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट से आते हैं, इफ यू स्किप दोज क्वेश्चंस एंड डू नॉट फ्रेट ऑन दीज क्वेश्चंस कि एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी बुक पढ़ने लग जाओ, नई बुक उठा के, सो देयर इज नो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में पूछ लिया एंड उसको पढ़ने के लिए आप एक पूरी पर्सनालिटीज की बुक पढ़ने लग जाओ, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी पर्सनली। तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स, और आइदर यू हैव रेड बिपिन चंद्रा or your class notes, or you have gone through your spectrum, तो either choose one of them। और उसके साथ what I would suggest is कि मेरे को कहाँ advantage होता, because I have already read सुमित सरकार and Placido Partition, तो मैंने actually modern history की 3 बुक पढ़ी हुई है, ठीक है, but that is because fairly I have been attempting from quite some time, मेरे को दो साल हो गए, 2-3 साल हो गए इस प्रिपरेशन की लाइन में। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि प्लासिडो पार्टीशन इज अ गुड बुक, सो यू कैन आइदर रीड प्लासिडो पार्टीशन। अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो प्लीज अब मत पढ़ना, अब टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। अभी तो जो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, बिपिन चंद्रा पे फोकस करिए एंड रीड आइदर स्पेक्ट्रम टू रिवाइज इट, क्योंकि स्पेक्ट्रम के लास्ट में ना कई सारे आपके पेजेंट मूवमेंट, ठीक है, आपके ट्राइबल मूवमेंट्स, आपके अलग अलग जो मूवमेंट्स हुए हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, वो एक जगह कंपाइल करके दिया हुआ है, तो रिविजन में भी इट इज कंपैरेटिवली ईजी है। तो इसलिए स्पेक्ट्रम में आपको सजेस्ट करता हूं, बट अदरवाइज थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ना, बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्री के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं पर्सनालिटी बेस्ड इन योर मेंस, ठीक है, तो तब वो कर लेंगे, बट अभी प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम विल सफाइस। अब अगर पीपी चंद्र नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली 140 डेज लेफ्ट, एंड नाउ इट्स द टाइम कि यू मैक्सिमाइज योर रिविजन ऑन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जितना पढ़ लिया होता ठीक है। नाउ कमिंग टू द अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का क्या है कि वंस यू आर डन विद योर बेसिक्स, ठीक है, आपने बेसिक्स पढ़ लिए, चाहे आप किसी भी नोट से पढ़ लो, और रमेश सिंह से पूरी बुक नहीं पढ़नी है, रमेश सिंह के कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे टॉपिक्स, बाकी आपके बेसिक नोट्स होंगे। बट इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अगेन पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लाइक लास्ट ईयर पूछा था S4A स्कीम, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग के लिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, सिमिलरली पैरा, तो उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो व्हेनेवर योर इकोनॉमिक सर्वे कम्स इन दिस ईयर बिफोर February, so that will be important, so just quickly go through your economic survey। लास्ट ईयर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर था, हो सकता है इस बार भी कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट हो इसलिए। तो ये आप इकोनॉमिक सर्वे जरूर देख लेना, ठीक है। समरीज का कोई फायदा नहीं होता बिकॉज समरीज आप रिवाइज नहीं कर पाते, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा ढंग से, बिकॉज एक बार पढ़ के इफ यू मेक नोट्स दैट विल ऑल्सो हेल्प इन योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा एंड रीड बी थॉरो विद करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी। जब आप बेसिक कवर कर लो, बेसिक आपका नहीं कवर हुआ है तो आप एनसीईआरटी क्लास 11th है वो पढ़ लीजिए, ठीक है, और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है वो पढ़ लीजिए, दैट विल सफाइस। एंड बाकी जो करंट अफेयर्स में आ रहा है दैट यू कैन कवर विद इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में इतना इशू नहीं है, स्टिल पीपल आर स्कैर्ड बट देयर इज नो नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ इकोनॉमी। नाउ कमिंग टू योर साइंस एंड टेक, साइंस में अगर नहीं करना है तो छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो आप क्लास 10 तक एनसीईआरटी देख सकते हो, 7 to 10 की एनसीईआरटी देख सकते हो फॉर साइंस। हाँ, क्लास 12th की बायोलॉजी की साइंस की जो बुक है उसके लास्ट 4 चैप्टर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, एंड इट इज अ मस्ट डू चैप्टर फॉर योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। क्लास 12th बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर्स, तो वो आपको करके जाने हैं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा आपका साइंस एंड टेक का, और साइंस एंड टेक में अगेन पूरा करंट अफेयर्स रहता है, इसरो, एस्ट्रोसैट, सैटेलाइट्स, न्यू जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। सो वट एवर इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है, अब ग्रेविटेशनल वेव्स, लीगो, लैग्रेंजियन पॉइंट्स, तो जो न्यूज में आ रहा है, नई डिस्कवरी हो रही है, नोबेल प्राइज में क्या काम हो रहा है, नोबेल प्राइज पर्टिकुलरली नहीं पूछते बट किस फील्ड में काम है उससे रिलेटेड वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ओवर देयर एज वेल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी कंप्लीटेड विथ योर करंट अफेयर्स। सो पूरे अगर मैं प्रिपरेशन का आपको सार बताऊं, द होल क्रक्स इज करंट अफेयर्स बेस आपको बनाना है एंड 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। हाईएस्ट प्रेफरेंस टू ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, देन यू कैन गिव प्रेफरेंस टू पॉलिटी बिकॉज पॉलिटी विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ लॉट ऑफ रिविजन, ठीक है, एंड देन गिव फोकस टू मॉडर्न हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन उसके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, एनीवे आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ोगे एंशिएंट आपकी हिस्ट्री तो उसमें कवर हो जाएगा, राइट। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल छोड़ दो अगर आप नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यू कैन कवर थ्रू आर एस शर्मा। और एक बार हाँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आप प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, हिस्ट्री के लिए प्लीज न्यू ज्योग्राफी में जो थीम्स वाली बुक्स है ना वो जरूर पढ़ लेना। डू नॉट फॉरगेट टू रीड द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो बुक्स है, वो न्यू बुक्स हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स के बहुत क्वेश्चन फंसे थे और पहले भी फंसते हैं। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री करके जो बुक है आपकी हिस्ट्री की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एंशिएंट में बाकी आर एस शर्मा से एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सतीश चंद्रा में के लिए मिडिवल इंडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं और इतने क्वेश्चन आते भी नहीं मिडिवल इंडिया से। स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो व्हाट यू कैन डू फॉर मिडिवल हिस्ट्री, तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हो आप, नहीं तो आप और कुछ चैप्टर्स कर लो, भक्तिज्म, सूफिज्म, विजयनगर एम्पायर के, ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मिडिवल हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे लेटर मुगल्स, ठीक है। अभी आजकल मराठास के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो रीड अबाउट एंग्लो मराठा वॉर्स, क्योंकि न्यूज में तो उससे रिलेटेड कुछ पूछ ले, मराठा से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आपको अगेन यू हैव टू एनालाइज द ट्रेंड फ्रॉम करंट अफेयर्स। जैसे अभी रिसेंटली मराठा एंड उनका एजुटेशन का इशू आ रहा था, न्यूज में चल रहा है, तो वो जो है आपका क्वेश्चन पिक हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली आपसे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पूछ सकते हैं, पेशवा बाजीराव के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थीम वाली बुक जो है दैट इज फॉर इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, तो वो आपको उससे कवर करनी है। बाकी आपको थीम्स के अलावा एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा मैंने बता दी है, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कि कैसे कैसे सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्ट्रैटेजी, ठीक है, फोर्थ पॉइंट 3 मैं बता चुका हूं आपको। फोर्थ इज डू नॉट नेग्लेक्ट करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फोकस ऑन योर न्यूज़पेपर्स, ठीक है, रोज पढ़िए न्यूज़पेपर को, अपने नोट्स बनाइए, मेक इट सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और टॉपिक वाइज। अगर आपको नहीं पता नोट्स कैसे बनाने, आई हैव ऑलरेडी टेकन, लास्ट ईयर मैंने एक लाइव सेशन लिया था अनअकैडमी में जिसमें मैंने बताया, आई हैव शोन माय पर्सनल नोट्स दैट हाउ टू हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू। सो मोर देन 1.5 लाख पीपल ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको देख चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हो। आई हैव शोन द नोट्स दैट हाउ यू डिफरेंशिएट नोट्स सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, तो आप देख लेना कैसे नोट्स बनाने हैं। एंड समरी विल बी फॉर रिविजन, ठीक है, डू नॉट, समरी शुड नॉट बी द बेस। योर जो आपकी करंट अफेयर समरी होती है दैट शुड नॉट बी द बेस ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट। सो दैट शुड बी द क्राइटेरिया। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स मेक, दे डू नॉट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बिफोर गोइंग टू द प्रीलिम्स पेपर। जो आपकी एबिलिटी है ना टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो तब तक डेवलप नहीं होगी until and unless you practice as many mock tests as possible. So at least before appearing for 3rd June के prelims में at least practice mock test, at least मैं minimum तो बोलूँगा at least 35 to 40, at least इतने करके चाहिए, because then only you will be able to develop this ability of identifying and developing this knack of identifying the options जो गलत है। So हम जो guess estimate बोलते हैं ना, that you eliminate the most probably wrong option, वो तब तक डेवलप नहीं होगी ability until unless you practice as many mocks as possible। तो जो आप यहाँ पे for example अगर आप यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड इफ यू आर तुक्का मार रहे हो, आप गेस कर रहे हो और आपका 75% ऑफ टाइम आपका गुस्सा जो तुक्का है वो गलत हो रहा है,
तो ये आप समझ लेना कि एग्जाम में भी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका तुक्का गलत होगा। तो इफ आपके क्वेश्चंस इतने बन गए हैं कि आपको लग रहा है कि कट ऑफ समवेयर क्लियर हो जाएगा, तो और क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में तुक्का प्लीज मत मारिएगा, डू नॉट गेस, बिकॉज आपके मॉक टेस्ट के टाइम पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे 30 to 40 जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें 75 to 80% टाइम आपके जो तुक्के थे वो गलत हो गए। तो वहां पे रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी आपके तुक्के गलत हो जाएंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट का करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, दैट यू बिकम कंफर्टेबल। ठीक है, यू बिकम कंफर्टेबल विद दिस, आपका ब्रेन इस माइंडसेट में आ जाए दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू डेवलप दिस एबिलिटी ऑफ आप उसको एस्टिमेट करके, गेस करके, यू eliminate the options which are most probably wrong. ठीक है, so that is the fifth and final point that I want to give you guys to maximize your score for prelims. So in the last part now, I'll take up a few questions if you have any questions, and then probably we'll end this session. So just shoot out your questions now. How to study economic survey? So economic survey, you have to go page by page, and if suppose if you have less time now, if you're not able to complete economic survey page by page, at least read the boxes which are mentioned in the economic survey. यार ऑप्शनल अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब अभी मत पढ़ो, क्योंकि अब टाइम नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ऑप्शनल बाद में कर लेना, अब थोड़ा बहुत ये कि थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, बट नाउ द फोकस शुड बी नाउ ऑन कंप्लीटली ऑन प्रीलिम्स। टेस्ट सीरीज यार ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट एटलीस्ट अटेंड मॉक पेपर्स एटलीस्ट 35-40, तो 40 तो मिनिमम मॉक टेस्ट आप अपीयर करो। If you're weak on CSAT, the only thing I can suggest is practice, and एक आइडिया इसमें एरिया आप आइडेंटिफाई कर लो, वेदर यू आर गुड इन क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर लॉजिकल रीजनिंग, और या फिर वेदर यू आर गुड इन कॉम्प्रिहेंशन। तो वो क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करना चालू करो जिस एरिया में आपको एक्सपर्टीज है, या फिर जिस एरिया में आपको लगता है कि यू आर मोर कंफर्टेबल। सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन लॉजिकल रीजनिंग, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन फर्स्ट एंड प्रैक्टिस सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो आते हैं CSAT में। सो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू देयर। सो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। It is possible to crack yes prelims in 4 months provided that you have a certain bit of basic knowledge. आपने NCERT थोड़ी पढ़ी हुई है। हाउ टू सॉल्व मॉक्स? यार मॉक्स ऐसे लो जैसे इफ यू आर सिटिंग इन अ प्रॉपर एग्जामिनेशन, 2 घंटे में प्रॉपर टेक यू कीप योर एनवायरमेंट वैसा कि आप टाइमर लगा के 2 घंटे में टेस्ट दो एंड अटेम्प्ट 1 to 100 क्वेश्चंस एंड सेलेक्टिवली गो थ्रू द पेपर। जो आपको पहले क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं पहले वो अटेम्प्ट करिए, देन गो टू द सेकंड राउंड जहां पे आपको फिर जो थोड़े आप 1-2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं, देन यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। और उसके बाद अगर आपको लास्ट में लग रहा है कि थोड़ा कट ऑफ कम आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, देन यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जिसके एक भी ऑप्शन आपको नहीं आते हैं, बट वो बहुत कम रखना, मतलब लास्ट में लास्ट रिजॉर्ट है वो। इन्वायरमेंट के सोर्सेज शंकर IAS एंड विकिपीडिया आर द बेस्ट सोर्सेज, प्लस योर NCERT क्लास 12th के 4 चैप्टर्स। योर अनअकैडमी प्लस की जो 30 क्लासेस हैं ज्योग्राफी कोर्स की, इट विल कंप्लीटली सफाइस योर पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, इवन योर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है उस कोर्स में। इफ यू वांट आई कैन कनेक्ट टू यू पीपल जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है, तो आई कैन लेट यू गाइज बेसिकली यू कैन इंटरेक्ट विद दोस गाइज एंड यू कैन गेट द फीडबैक ऑफ द कोर्स। सो इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू मैनेज ज्योग्राफी या प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन ज्वाइन दैट ज्योग्राफी का कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस, and I'll give you the link in the description box that will be available afterwards. So वो पूरे 30 classes में your complete geography will be covered and 95% of your optional geography will be covered. So if somebody has geography optional, that can also those can also enroll in this course. 5% जो extra है that I can give you the sources and the books. इंडिया बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इट्स कंप्लीट वेस्ट। इंडिया बुक की जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो आएंगी दैट वी विल कवर सेपरेटली, वो आप अलग से कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है, गवर्नमेंट साइट्स नहीं करनी, गवर्नमेंट स्कीम्स करती है। लास्ट मंथ में आपका कंपाइलेशन आएगा, सो यू कैन प्रोबेबली रेफर टू एनी कंपाइलेशन विच एवर साइट यू लाइक। Best source for mock test here, if you are living in Karol Bagh in Delhi, you can probably pick up the photocopies of the paper online. You can join whichever you like, so that is not an issue. Solve mock test start from now, ठीक है, and stop it before 10 days before prelims, ठीक है। If you have not prepared well now, तो at least 2 महीने पहले prelims के at least April में start कर दो आप mocks and give it till like 15th of May. उसके बाद just focus on revision and not many mock tests, because अगर वहाँ पे score कम आएगा last में आपका, तो you will get a little demoralized and demotivated, so don't do that.
The duration of each classes will be 1.5 hours in the geography live class, and we will cover each and every topic. तो अगर आप class attend नहीं भी कर पाते हो, the videos will be recorded and you can watch it as many number of times you want. Plus we'll be providing you complete notes. वो notes जो होंगे 15-20 different sources से बने होंगे. All your major books, सविंद्र सिंह, गोशिंग लियोंग, NCERT, खुल्लर, माजिद हुसैन, सबसे वो compiled notes हैं. So you do not need to refer any other book if you join that course, right? So thank you so much guys for joining in. I was really happy and glad to see you all, you guys, live and attending this live session. So you can reach out to me on my Unacademy page. If you have any queries, you can reach out to me on my Quora also as well. And if you're interested in the geography course, you can just enroll in the course by clicking in the description box and checking the link. All right guys, thank you so much.